as an executive manager, so that means that whenever you are working as an executive manager, so you have 2 to 3 different departments. So I have HR, operations, and marketing, but I generally like to go as an operations manager because that's something new. मेरा पहला experience है, तो I'm loving it. Yes. तो हम लोग let me share the screen और फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ दोबारा से. Okay. ठीक है. Can you guys see my screen? Yes, Manal, we can. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है जी. मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है और ये सेशन का भी आप लोगों को पता है कि लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट का हमारा सेशन है. इसमें बेसिक जो सबसे पहली चीज आई वुड से इज यू, नॉट अ लीडर, नॉट अ टीम, नो वन बट यू. तो हम स्टार्ट करेंगे विद द टर्म सेल्फ अवेयरनेस. और व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? इट्स बेसिकली यू knowing about yourself, who you are, आपकी क्या personality है, आपके क्या actions हैं, आपकी values क्या हैं. So that's being self aware. ठीक है. और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए ना, honestly, that's your weaknesses and definitely your values. ठीक है. ये दो चीजें ऐसी हैं that you should know about yourself. If you do not know अभी currently, take your time with yourself. Like what I used to do in Lums was I used to take myself out on dates. So that's something that I really miss about Lums as well. तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, रीड थिंग्स और सी व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, गेट टू नो योरसेल्फ. उससे क्या होगा कि you will know yourself and you will have more confident in your actions. तो आप किसी के पास जा रहे हैं ना, तो you don't need to worry कि यार हर चीज को आप हाँ नहीं कह रहे होंगे. सबसे पहली चीज, आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. जैसे अभी भी आज सुबह से मेरे 12 बजे से कंटिन्यूस इंटरव्यूज चल रहे हैं. और व्हाट आई सी इन किड्स दीस डेज इज कि दे से यस टू एवरी सिंगल थिंग. आपको हर चीज नहीं आ सकती. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड. सो प्लीज नो योर सेल्फ. और उससे आपको पता चलेगा. जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो व्हेन आई स्टार्टेड एट एजुकेटिव, one thing I know about myself is that I cannot do the same 9 to 5 job throughout my life. I cannot. There comes a point where I give up. उसमें फिर like I don't mind where I am, what I'm doing. तो मेरी बस हो जाती है. So that's something that I know about myself, and that is something that I kept telling my manager again and again. Not obviously directly, but in a very respectful and a professional manner, that I am ready for more responsibilities and I love to do different things at the same time. So when I started as an author success sports coordinator, after a year, there was a time that I had succeeded in everything. Like वो एक हम लोग educative में हंसते हैं कि ASCC होने में PhD कर ली थी हमने. तो by that time, my manager knew कि अब she needs something else. So उसमें ये था कि what she did was कि उन्होंने मुझे project management वाली side पे भेज दिया. And what worked was कि I started managing the partners. So projects के साथ मुझे partners मिल गए, and partners like Oxford University, PACT programmers, इस तरह के like 4 big names in the publishing software companies के publishing houses जो होते हैं या software universities के, उन 4 big names के साथ I got to work. So that's all because कि मुझे पता था कि मेरी what's my weakness or maybe my strength, I don't know वो क्या होगी, but yes, that worked for me. So do know yourself. और ये कैसे होगा? Just जिस तरह से you take time in getting to know your friends or other people in your life, इसी तरीके से take yourself as a friend and get to know yourself और देखें कि आपके क्या चीजें हैं. Also एक क्वेश्चन जो अभी मेरे literally it was not part of the presentation but अभी पिछले इंटरव्यू में ही हुआ है, वो ये है कि द क्वेश्चन व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट्स योर वीकनेस. प्लीज डू नॉट टेल कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि आई कैन टेक अ लॉट ऑफ वर्क. नो, इससे आप अपने हायरिंग मैनेजर को ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर दे दो जितना काम देना है. एंड योर वीकनेस शुड नॉट बी अ वीकनेस जो कि आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाए. जैसे समवन जस्ट टोल्ड मी कि उनकी वीकनेस ये है कि दे कैन नॉट फेस क्रिटिसिज्म और फीडबैक, इवन फीडबैक. सो दैट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. सो आपकी वीकनेस वो होनी चाहिए जो कि उसी सेंटेंस में आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें. फॉर योर सेल्फ अवेयरनेस, नो योर वीकनेस, वर्क ऑन इट, yes, but do not tell this to everyone. You do not need to be so honest in your interviews. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं जी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर.
ग्रोथ माइंडसेट हमारा ये है कि देयर इज अ फिक्स्ड माइंडसेट, दैट इज के हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं. ग्रोथ माइंडसेट इज के यू चेंज विद टाइम. एंड कंसीडरिंग यू ऑल आर फ्रॉम लम्स, तो आप लोगों को तो पता होगा कि आप जैसे लम्स आए थे आप वैसे जा रहे हैं, अब वैसे नहीं जा रहे. अगर आप जा रहे हैं तो दैट्स रॉन्ग. आई रिमेम्बर आई टुक अ कोर्स विद वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स इन STSP, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं. और उनके साथ ये हुआ था कि बाय द एंड ऑफ द क्लास, इट वाज द एंड ऑफ माय थर्ड ईयर एज वेल, और कोविड बिल्कुल आ रहा था. तो लास्ट लास्ट क्लासेस में सर ने पूछा व्हाट यू लर्न, क्या चेंज हुआ. तो देयर वाज समवन हु सेड के मेरा कुछ नहीं बदला, मेरा चेंज नहीं हुआ कुछ भी, मैं चेंज नहीं हुआ. तो एंड ही सेड इट विद प्राइड, बट सर ने उसको यही बात की कि दैट इज रॉन्ग. मतलब इवन द इंस्ट्रक्टर सेड कि ये उनके पार्ट पे भी गलत है और स्टूडेंट के पार्ट पे भी गलत है कि अगर वो जैसे आया था वो वैसे ही जा रहा है. सो एक्सेप्ट चेंज, बी अडेप्टेबल, और यू शुड नो कि आपका जो है ना माइंडसेट, आपकी लाइफ, आपकी थिंकिंग विद टाइम चेंज होगी. व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नम्स, अगर आप में से कोई ग्रेजुएटिंग सीनियर्स हैं तो दिस इज द टाइम जिसमें देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. इफ यू आर अ स्टूडेंट तो हर ईयर में देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, क्विजेस हैं, एंड टाइम पासिस बाय. एक सेकंड में आपको पता भी नहीं चलता 4 साल गुजर गए हैं. बट इफ यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, यू विल स्टॉप, यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके कोर्सेज में क्या हो रहा है. आपको सिर्फ ये नहीं पता होगा कि जी फलां मॉडल में फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां मॉडल में ये कह दिया, ये वाला पर्सनैलिटी टेस्ट कर लो. आई लव ऑल ऑफ दिस, मुझे बहुत मजा आता था. बट द पॉइंट इज कि उसको समझें रियल लाइफ में उसको कैसे लेके आना है. आप हमें उसको रियल लाइफ में ऐसे लेके आना है कि उसको उसका मतलब क्या है, वो बात क्या कर रहा है, और फिर उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं. लाइक आई सी सम, कुछ लोगों के रोल नंबर से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल शुरू शुरू वाले बच्चे भी हैं. तो आप लोग अभी पढ़ेंगे बेसिक, वो जो वांट, नीड और डिजायर वाला कॉन्सेप्ट है और उसके मॉडल्स हैं, आप लोग उसको पढ़ेंगे. एक होता है उसको पढ़ना, उसको समझें, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें कि व्हाट इज वांट, व्हाट इज नीड, व्हाट इज डिजायर. इफ यू आर डूइंग समथिंग फाइनेंशियली, आप उसको टेस्ट करें कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चीज काम कर रही है, मुझे इसके ऊपर अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि नहीं है. सो लुक इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स के द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग इज रियल, यस. लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है. अच्छा, और हाउ टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट, इसमें सबसे पहला है इंटरनल डायलॉग. टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करें. इट्स नॉट क्रेजी, इट्स नॉट, इफ सम ऑफ यू हैव सीन फ्रेंड्स तो यस अ बिट ऑफ फीबी लेकिन जो है इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू. ठीक है. अब अपने आप को नहीं समझेंगे तो आप किसी को नहीं समझ सकते. इफ यू हैव सीन, आई डोंट नो, ब्रुकलिन नाइन एंड, मैं तो बहुत पुराने जमाने की टीवी शोज की बात कर रही हूँ, आजकल के तो मैं देखती भी नहीं हूँ. लेकिन जीना का कैरेक्टर, मे बी, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट इंटरनल डायलॉग से आप डेवलप करते हैं. इट्स ओके. गेटिंग टू नो योर सेल्फ, सी वेयर दे एंडेड अप एट द एंड. ठीक है. अच्छा, और उसके बाद यू हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. ये एक चीज है जो कि थ्रू आउट माई करियर एज अ टीम लीड ना, आई यूज टू सी किड्स मेस अप अ लॉट. ठीक है. और इट्स फाइन टू मेस अप, ऑनेस्टली. मेरे उसमें तो ये है कि अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे. बट there's always a reason, there's always a बहाना. तो उसमें आई ऑलवेज टेल पीपल कि यू हैव अ चॉइस. आप लोग 18 साल से बड़े हो ही गए हैं तकरीबन सारे, जो नहीं हुए वो होने वाले होंगे. तो आपका एक, आपकी अकल, आपकी समझ डेवलप हो चुकी है. यू हैव अ चॉइस, यस यू हैव. तो डोंट बेसिकली स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस. स्टॉप दूसरों के कंधे पे बंदूक रखना. स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एंड सी के ठीक है, दिस वाज माय मिस्टेक, दिस वाज नॉट माय मिस्टेक. थिंक थिंग्स थ्रू. ठीक है. देन मेक अ चॉइस एंड देन प्रैक्टिस. प्लीज प्रैक्टिस. इट्स व्हेन आई स्टार्टेड तो लम्स में देयर वाज दिस इंस्ट्रक्टर सारा सुनील. आई डोंट नो इफ शी इज टीचिंग अभी भी के नहीं, बट शी इज द बेस्ट मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर यू विल एवर फाइंड. आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन. तो शी यूज टू टेल के प्रैक्टिस करो अपने आप को, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये तो मेरे ख्याल से आपको लम्स में हर दूसरे बंदे ने बताया होगा, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बट यस, डू इट. आप जब तक करेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. आप अपनी
प्रेजेंटेशंस को प्रैक्टिस करें, आप अपनी डायलॉग्स को प्रैक्टिस करें। जैसे अभी फिलहाल ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, आई was up till 5 this morning क्योंकि a lot of interviews and a lot of work related things were happening, but I had to practice। तो प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस किया। I wanted to make it non-professional, wanted to make it sound very light for you all. तो practice से ही आपको आता है। And then your mentors. Find people, find good people. Not only people, maybe platforms, websites, videos, Instagram के pages. I don't know what works for you. Book, your senior, very famous person, कोई भी हो सकता है। But find mentors. It is very important. Find mentors, learn from them. And one more thing is that sometimes it happens that your mentors might make some mistakes, and that's completely okay as well। ठीक है, तो आपका एक mentor है, जैसे मेरी एक mentor है, और sometimes things that she do वो sense नहीं बना रही होती, but at the same time I learned a lot from her। So you should know कि ये मेरा mentor है, इससे मैंने कहाँ तक सीखना है। And sometimes you will fail as well, and that is completely okay। ठीक है, give yourself space, give yourself time। तो ये एक चीज है कि you guys are really hard on yourself sometimes, so उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें और find your mentors और उनको reach out करें। It's okay to reach out, it's okay to tell people कि I want to learn, it's okay to reach out to people on LinkedIn। there was a time मैं नहीं करती थी, अभी भी मेरी प्रोफाइल खोल के देख लें, कोई पता नहीं 4 पोस्ट भी ना हो शायद, बट मेरा इनबॉक्स खोल के देखें तो बहुत सारी चैट्स होंगी और बहुत सारे लोगों से होंगी, क्योंकि दैट्स वन थिंग आई लर्न। यू आर लर्निंग लाइक विद टाइम ना। तो मैंने ये सीखा है कि आई शुड बी टॉकिंग टू पीपल, आई शुड बी टॉकिंग टू पीपल जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या लाइफ है। कैफे में मिले उनसे, कॉफी पे मिले उनसे, कॉल पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें। इट्स ओके, बट यू शुड हैव पीपल जो कि आपको कुछ सिखाएंगे, आप खुद से कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, एंड देन इज सो व्हाट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है। आई वॉज एन एनओपी स्कॉलर एट लम्स, ठीक है, और आई ज्वाइंड एज एन एनओपी पर्सन जो एसओएस समर कोचिंग सेंटर के लिए आते हैं, एससीएस आई थिंक था। तो उसमें जो है ना, व्हेन आई केम, तो मैं 2016 में आई थी और आई वाज 16 इयर्स ओल्ड बाय दैट टाइम। तो आई मेट मैम सादिया। ठीक है, मैम सादिया एनओपी में आई थिंक अभी भी होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह करे हूँ, शी इज दी बेस्ट। तो उन्होंने ना सो बहुत सारे सेशंस हुए, बड़े गेस्ट आए, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, बट बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी फील हुआ कि यार ये इतनी छोटी उम्र में ये बंदा यहाँ पहुंच गया। इतनी छोटी उम्र में, कुछ लोग मेरे से 2-3 साल बड़े थे और वो आके गेस्ट सेशंस दे रहे थे, और मैं इतनी परेशान हो रही थी कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुंचे मैं, और मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं लम्स आ गई हूँ मुंह उठा के और ये वो। तो आई वेंट टू हर, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने पास ना ये याद रख लो कि सो व्हाट, अपने आप के पास रखो। तो दिस इज समथिंग जो कि वो हमेशा मुझे कहती हैं। फिर मैं लम्स में भी अपनी लाइफ में उनके पास बहुत गई हूँ, और ये एक लेसन है उनका जो वो हमेशा मुझे देती हैं। और मैं अपने आप से ये कहती हूँ, सो व्हाट, इन एनी सिचुएशन, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ एंजाइटी हो रही है किसी चीज में, कोई टेंशन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंटरव्यू है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, आस्क योर सेल्फ सो व्हाट। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई रिमेम्बर मैं अपने जब ओवीक में आई थी ना, तो ओवीक में आप नए नए आए होते हो, आप बड़े खुश होते हो। तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बहुत बड़ी फैन थी, बहुत बड़ी, मैंने कोई 4000 दफा देख लिया होगा पूरा सीजन। तो उसमें हमारा कोई वो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन गेम सी हुई कोई, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउस टारगेरियन का, आई थिंक उन्होंने पूछा कि लाइक एनिमल कौन सा होता है उनके स्लोगन में या कुछ भी, लाइक सो इजी, और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हार्ट है, इन माय माइंड आई वाज टेलिंग देम इट्स अ ड्रैगन, बट आई सेड इट्स अ लायन। ठीक है, तो वो इट वाज लाइक ओके, ठीक है गेम ही थी, बट हार्ट क्रशिंग मोमेंट था मेरे लिए, लिटरली। तो मैं लिटरली वहां से उठ के, इट वाज लाइक A4 या कहीं हो रहा था, वहां से निकल के सामने पीडीसी से ऊपर एनओपी सेंटर, सीधा मैम सादिया के पास गई थी मैं। और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उनके पास गई थी, यस। बट उन्होंने मुझे यही चीज सिखाई कि तुम्हें मैं हमेशा से एक चीज बताती आ रही हूँ कि सो व्हाट, तो क्या हो गया। एंड देन उसके बाद से आई एम ओके विद इट कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, एम्बेरसिंग मोमेंट्स भी होंगी, इंटरव्यूज में भी मैसअप करोगे, अपनी लाइफ में भी मैसअप करोगे, प्रेजेंटेशंस में भी करोगे, दैट्स फाइन। आस्क योरसेल्फ सो व्हाट। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ गया है फेलिंग और लर्निंग। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आर यू फेलिंग और आर यू लर्निंग।
ठीक है। तो ये एक चीज है कि जो आपने अपने आप से पूछनी है कि एम आई फेलिंग और एम आई लर्निंग। यू आर ऑलवेज लर्निंग। यू विल फेल तब जब आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी कर ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अभी अपना एजुकेटिव में बता रही थी, तो आफ्टर 2.5 ईयर्स अगर मैं एक बेसिक ऑन बोर्डिंग कॉल को मेसअप करूंगी ना, तो दैट्स मी फेलिंग, बट अगेन इट्स ओके, आई विल टेक मोर कॉल्स। लेकिन उसके अलावा इफ आई एम डूइंग समथिंग न्यू, तो आई एम ऑलवेज लर्निंग, आई एम ऑलवेज लर्निंग। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आपने अपने दिमाग में रखना है। अगेन अपने ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी। द वर्ल्ड इज गोना डू दैट, तो आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। So this was the first slide. अच्छा, if you guys have any questions वगैरह ना, तो you can put them in the chat, या end पे I will ask you guys, तो उस time पे हम लोग we can have a conversation about anything you want. बेशक screenshot लेके रख लें, write them down, अभी हम लोग बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज टीम डायनामिक्स। सो आपने अपने आप को तो जान लिया, नाउ इट्स टाइम टू गेट टू नो द टीम। ठीक है, इसमें आपके पास ये है कि हाउ टू मैनेज योर टीम। इसमें सबसे पहली चीज आपके पास आती है जी कि यू शुड नो अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू रूल्स। ठीक है, अगर आपने लीडरशिप की तरफ जाना है ना, तो दैट मीन्स कि आपके पास लोग होंगे। यू विल हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू। तो सबसे पहले है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके क्या बिलीव्स, वैल्यूज। अगेन ये सारे पॉइंटर्स जो आपने अपने आप के बारे में पूछने हैं। तो इफ यू नो योरसेल्फ, इफ यू नो अबाउट योर माइंड, इफ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सनैलिटी, आप दूसरे के बारे में ये चीजें खुद ब खुद जज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आस्क देम। मतलब मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि इफ आई हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग अंडर मी एंड आई हैव अ फ्यू टास्क, आई आस्क देम कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। ठीक है, और कंसीडरिंग एक चीज जो लम्स स्पेसिफिक मैंने बहुत ज्यादा देखी है, वो ये है कि we get to climb the ladder a little faster as compared to other. Again, दूसरे लोग, there are a lot of good people, yes, but एक वो I don't know why corporate world में ना there is this mindset, चाहे वो deserve करता हो ना करता हो, तो उसमें क्या होगा कि soon you have, very soon in your career you have people working under you। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपकी एज फेलो ही होते हैं वो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एज फेलो होते हैं। तो हाउ टू केटर टू दैट सिचुएशन। सो व्हेन आई बिकेम अ टीम लीड, सो मेरा थोड़ा सा मसला ये हो गया था, मसला तो नहीं, आई डोंट नो, व्हेन आई वाज अ किड, तो आई जम्प्ड अ फ्यू क्लासेस। तो उससे क्या हुआ कि आई ग्रेजुएटेड सूनर, लाइक वे सूनर। पीपल माय एज वर ग्रेजुएटिंग इन 2023। तो दैट मीन्स कि मेरी टीम में जो न्यू हायर्स आ रहे थे, them and I were of the same age. So setting up that line, हमारा like हमारा सोशल मीडिया सेम है, हमारी दुनिया सेम है, बट स्टिल आई एम एट अ सीनियर पोजीशन। तो सेटिंग अप अ लाइन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो वो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू लीड अ टीम। ठीक है, उसमें ये सारे पॉइंटर्स आपके जरूर काम आते हैं। सबसे पहले आपको पता लग गया कि ठीक है भाई, इसकी ये स्ट्रेंथ्स है, इसकी ये पर्सपेक्टिव्स हैं। स्ट्रेंथ्स में यू टेस्ट एंड यू एक्सपेरिमेंट। एक चीज होती है, अब मुझे उसकी एग्जैक्ट बिजनेस टर्म नहीं याद आ रही, बट वो जिसमें आप लोग जॉब शिफ्ट कर रहे होते हो, लाइक डिफरेंट टास्क, डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइम्स में कर रहे होते हैं। सो इफ समवन इज वर्किंग ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर नाउ एंड अदर इज वर्किंग ऑन कंटेंट क्रिएशन, आफ्टर सम टाइम आई विल स्विच द रोल्स। ठीक है, तो आई थिंक जॉब स्विचिंग या रोल स्विचिंग ये कहते हैं इसको। तो उसमें जो है ना, वो आपका सबसे लाइक दैट्स योर बेस्ट फ्रेंड इन गेटिंग टू नो योर टीम। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई। देन यू नीड टू सेट वेरी क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये आपने अपने इक्वल्स के साथ भी करना है, अपने सीनियर्स के साथ भी करना है। सो इफ यू आर गिवन अ टास्क, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ABCs ऑफ द टास्क। आपको पता होना चाहिए मैंने करना क्या है, व्हाट्स इसका सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट्स इन योर माइंड। ठीक है, अगले बंदे से आप ये पूछे, इफ इट्स योर सीनियर, रिस्पेक्टफुली आस्क देम कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मे बी प्रोजेक्ट रिजल्ट, और मे बी सर्वे डेटा एनालिटिक्स का कौन सा रिजल्ट उनको चाहिए, और मे बी मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरह का पोस्ट उनको चाहिए, कैसा लाइक ब्रांड आइडिया क्या होना चाहिए, आस्क देम। ठीक है, और वो पॉइंटर्स, मीटिंग मिनट्स एक चीज होती है जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके आएगी, दैट्स के यू नोटिंग डाउन एवरी डिस्कशन और समराइजिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द मीटिंग। ठीक है, जब ये शुरू शुरू में मुझे आई थी
बहुत बुरा लगा था मुझे कि मैं क्यों बैठ के मीटिंग के नोट्स बनाऊं। मेरी मैनेजर ने मुझे कहा था आपने हर मीटिंग के बैठ के नोट्स बनाने हैं, और सबसे मुश्किल तरीन काम मेरे लिए ये था। बट सून आई रियलाइज्ड कि उससे क्या हो रहा था कि अगर कोई बंदा मुझे आके कह रहा है ना नहीं हमने तो आपको ये कहा था, आई हैड द नोट्स, आई हैड एवरीथिंग। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई बंदा कोई पॉइंट मिस कर देता है, आई हैड द नोट्स अगेन, ठीक है। तो और प्लस काम करते हुए आई हैड द नोट्स। तो मीटिंग मिनट्स और सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आ रहे थे कि टीम का कल्चर कैसा होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लूसिव। आप लोग ये नहीं कर सकते कि इफ यू डू नॉट लाइक समवन और ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था लेकिन इसने ये कर दिया था, आपके पर्सनल मैटर्स बीच में आ रहे हैं, नो, आप ये चीजें नहीं कर सकते। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। आपको यू नीड टू स्टे प्रोफेशनल। यू विल हैव पीपल वर्किंग अंडर यू, और वो आपके पर्सनल लाइफ में किसी और तरीके से आपके लाइफ का पार्ट होंगे। सेट अप अ लाइन, इट्स ओके। अगर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो यकीनन अनम्यूट करके मेरे बारे में बहुत बोलते हैं क्योंकि आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग माई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग अंडर मी। और कोई छूट नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा सख्ती होती थी मेरी तरफ से कि कोई बंदा ये ना कहते कि ये इसके फ्रेंड्स हैं तो इसलिए ऐसे कर रही है। तो डिफरेंशिएट नहीं करना लोगों में, और हर एक को इंक्लूड करें इन द कन्वर्सेशन। आस्क पीपल, listen to their ideas. Sometimes ना this happens as well कि if you are working, या आप लोगों में से कोई लोग सोसाइटीज के भी पार्ट्स होते होंगे, तो क्या होता है कि इन द मीटिंग और इन अ डिस्कशन आपको पता लगता है कि कोई बंदा बोलना शुरू हुआ है और उसके लाइक सेकंड सेंटेंस इनटू हिज चैट ना यू नो कि ये बात गलत कर रहा है। बट इट डज नॉट मीन कि आपने उसको बीच में रोकना है, नहीं। लिसन टू देम, आप पूरी बात सुने उनकी, फिर उसके बाद आस्क देम क्वेश्चंस कि अच्छा हाउ डू यू थिंक दिस विल वर्क, हाउ डू यू थिंक दिस विल वर्क। उनको आप उस प्रॉब्लम के रूट पर लेके जाएं कि व्हाई दिस प्लान और दिस पर्टिकुलर आइडिया वॉन्ट वर्क, ठीक है। फिर आप उनको बताएं कि लेट्स नॉट थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, नो, लेट्स कीप इट, ठीक है, किसी और टाइम के लिए। तो बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। डू नॉट, यू डोंट नीड टू बी वेरी डायरेक्ट, किसी के साथ बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत आपको। यू नीड गुड पीपल इन योर लाइफ, यू नीड नेटवर्किंग इन योर लाइफ। वो आपके पास तभी होगी जब आप लोगों को इंक्लूसिव फील करा रहे होंगे, आप उनकी सुन रहे होंगे, दे विल नो कि ठीक है दिस पर्सन लिसन्स, एंड देन यू गाइड देम। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द टीम्स। और स्पेशली ना ये आपके इक्वल्स के साथ हो रहा होता है कि आप when you get hired ना, तो चार लोग लम्स के एक ही साथ आ रहे हैं। some people you know, some you don't, but you are from the same batch, ठीक है। इट्स ओके, आप उनको भी इंक्लूसिव फील करवा सकते हैं। डज नॉट मीन कि एक बंदे को आप लम्स में जानते हैं उसी को आप ऑफिस में जानेंगे, फिर वेयर इज योर ग्रोथ। एक ही बंदे के साथ लम्स के 4 साल गुजारे, फिर उसी बंदे के साथ अगले 2 साल भी गुजारेंगे, 4 साल भी गुजारेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो पीपल, ठीक है। एंड देन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखे होंगे अबाउट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, फ्राइडेज इन द एचआर, इस तरह की चीजें जो कि दिखने में बहुत फनी होती हैं, करते हुए भी हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता था कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट देन यू रियलाइज एट सम पॉइंट, जब आप थोड़े से सीनियर्स पे आते हैं, यू रियलाइज कि दोज वर द टाइम्स व्हेन यू गेट टू नो पीपल, ठीक है। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, डू पार्टिसिपेट, डू पार्टिसिपेट, जस्ट फॉर योर लर्निंग। आपको किसी बंदे के बारे में पता लगता है, आपको कोई बंदा दिखने में लग रहा होता है कि यार मैंने इसके पास जाना, बट व्हेन यू वर्क विद देम ना, या आप उनका कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको लगता है वाओ दिस पर्सन इज वेरी कूल। दिस हैपेंड टू मी with a very senior person at Educative. He was a PhD and I think 20 or 30 years older than me. और हमेशा से बड़ों का और वो एक डर उनका सर का, जी नहीं ठीक है बस मैसेज स्लैक पे कर दूंगी, आई टेक माई मैनेजर विद मी इन द मीटिंग्स, एंड वी हैव अ सेशन। उसमें हमने जो है वो क्रोशिया का कुछ बनाना था, एंड ही मेड अ दिया, दिया जो होता है जो एक लाइक फायर लैम्प जो छोटा सा होता है, वो उन्होंने बनाया और वो बहुत बुरा बनाया और वो मेरे से पूछे थे बताओ ये क्या है, और मैं बहुत स्टूप में गई थी, ये बोट है, ये फ्लैग है, उसको उल्टा करके देख रही थी, इट्स एन अम्ब्रेला, मुझे नहीं समझ आई थी वो क्या है। तो दैट्स हाउ आई बॉन्डेड विद हिम। बट उसके बाद से वी हैड अ वेरी गुड टाइम, very good time at Educative. So that's also a very good learning and a very good memory, like a memory to cherish. And then sharing your knowledge. ये एक चीज है जो कि again you guys should have in you. I see people
SDSB के अगर यहाँ पे लोग हैं तो देयर इज अ वेरी जनरल टर्म कि भाई स्नेक्स हैं, नहीं है क्योंकि इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू बी अ स्नेक, बट इट्स नॉट बीइंग अ स्नेक, दैट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म टू यूज एंड आई शुड नॉट बी यूजिंग इट। बट क्या है कि बी पॉजिटिव, शेयर योर लेसन, शेयर योर लर्निंग्स, दैट्स हाउ टीम्स ग्रो। अगर आप अकेले कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, यू विल नीड पीपल, ठीक है। और आप अगर किसी को पुश करके, किसी को नीचे ड्रैग करके खुद ऊपर जा रहे हो ना, तो एट सम पॉइंट समवन एल्स विल डू द सेम विद यू, ठीक है। तो टेक द टीम अलोंग, वर्क विद देम। तो शेयर योर नॉलेज, शेयर योर लर्निंग्स। मेरी टीम के साथ ही होता था, देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई हैड अराउंड 15 पीपल इन माय टीम, और मेरा पूरा वीक जो है वो, अगेन, आई आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। अनदर एग्जांपल वुड बी कि एमजी की तरह मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी हर टाइम पे, तो वो, आई वॉज ऑलवेज इन मीटिंग्स विद माई टीम मेंबर्स। हमारा वीकली सिंक ही नहीं खत्म होता था। 15 लोग तो थे, एक हफ्ते में 15 लोगों के साथ हर हफ्ते मीटिंग करना, तो उसमें बहुत मुझे मुश्किल हो रही थी टू अंडरस्टैंड देम। और उसमें ये हो रहा था कि हर एक के लेसन अलग थे, बट दे वर नॉट शेयरिंग इट विद एनीवन। एक के साथ, एक बंदे ने एक ऑथर के साथ पर्टिकुलर ऑन बोर्डिंग की एट द सेम, फिर वो चीजें सेम आने लगी। 4 लोगों का एक ही मसला आ रहा था मेरे पास, बट वो मेरे पास आ रहा था, वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे थे। देन फिर हमने एक जॉइंट सेशन रखा इन द मीटिंग रूम, जो हफ्ते में एक दिन होता था, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करते थे। क्या सीखा आपने, कहाँ पर एरर आया आपको, कहाँ पे मुश्किल आई। उससे फिर क्या हुआ कि एक तो मेरा टाइम भी डिक्रीज हुआ, यस फाइनली मुझे अपना काम करने का भी टाइम मिला, और टीम की भी आपस में बहुत ज्यादा अच्छी एक वो बॉन्डिंग हो गई थी कि आई यूज टू सी देम किस इकट्ठे बैठे हैं, फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आई एम नेवर द बॉस जो के कहता है कि अपने डेस्क पर बैठे रहो, चुप करके बैठे रहो। नहीं, बाहर घूमने जा रहे हो, बैठ के बातें कर रहे हो, कुछ फनी लग रहा है, बल्कि मैं कहती हूँ मुझे भी बताओ यार, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द वर्क डन। ये एक मेरा बस एक सेंटेंस होता था एंड पे कि एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द वर्क डन, आई डोंट माइंड यू डूइंग एनीथिंग एल्स। तो वो फिर इस तरीके से हुआ। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग द नॉलेज। आपका टाइम बचता है, पीपल लर्न और पीपल रिमेंबर। मेरी टीम को आई थिंक अलग हुए, इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, लाइक फेब्रुअरी से स्टार्ट हुआ था एंड देन आई लेफ्ट एज वेल इन मई। तो ये 2-3 महीने से, बट अभी तक वी मीट एंड वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स। हम सब, like it's around 17-18 people, all of us are working in different companies, but we are very good friends. Then we have बल्कि very good friends से मुझे याद आया, if you know someone from educative ना, तो हमारा उन्होंने नाम रखा हुआ था स्टार परिवार हमारी टीम का, तो do ask them। अच्छा, उसके बाद आगे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, प्लीज लेट अदर्स डू द वर्क। ये एक चीज हम लोगों के अंदर, लाइक आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है। वो क्या है कि जी सब कुछ मैंने ही करना है। नहीं, सो के आप दूसरों से करवा सकते हो। इफ यू नीड हेल्प और आप यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, आपके पास एक बंदा है जो कि आपको लगता है इसके ऊपर काम कर सकता है, इज अ गुड रिसोर्स, उसको भी तनख्वाह मिल रही है, वो भी आके ऑफिस काम कर रहा है, तो उसको भी मौका दें कि वो भी कुछ कर ले। आस्किंग फॉर हेल्प, providing others with different opportunities, it's okay, it's fine। मतलब there were times जब हम लोग, like I have covered a whole shift for people and people have done the same for me। I have uh, maybe stepped down of some certain responsibilities and given those to those working under me, ताकि वो भी सीखें। दे हैव मेड मिस्टेक्स, यस, मुझे डांट भी पड़ी है बहुत ज्यादा कि इतने जूनियर लेवल के बंदे को इतने सीनियर लेवल के मैनेजर के आगे आपने भेज दिया, बट दैट्स फाइन। उन्होंने कोई बहुत बड़ा मसला नहीं किया था, एटलीस्ट दे गॉट टू लर्न। तो इसलिए प्लीज प्लीज लुक इनटू हाउ यू आर वर्किंग इन द टीम्स। और ये आपके पास तो सबसे अच्छा मौका है, डू दिस इन योर ग्रुप्स। आपके प्रोजेक्ट ग्रुप्स बनते हैं, कुछ कोर्सेज में तो 4-4 5-5 अलग अलग ग्रुप्स बन रहे होते हैं, तो उनमें ये सब कुछ करें, यू विल लर्न अ लॉट डेफिनेटली। एंड देन कोलैबोरेशन, ऑब्वियसली टीम जो है वो कोलैबोरेशन के बगैर नहीं होती, बट हाउ, अगेन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीजों की, ठीक है। फीडबैक इंकरेज करें करें एंड लिसन टू इट एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बंदा आके आपको कुछ भी बताएगा तो उसकी सुने। देयर वाज अ टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, so I was having back-to-back meetings with the team, but at one point ना they said कि आप सुन नहीं रही हैं, आप बस मीटिंग कर रही हैं हमारे साथ। And I realized कि that's very true। मैं उनकी सुन नहीं रही थी, मैं बस अपना टिक करना था, मैंने सिर्फ अपना टास्क। तो फीडबैक शुड बी encouraged and you should be working on it। Go and ask people। अभी आज ही एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी चीज हुई।
द गर्ल फ्रॉम वाज फ्रॉम नस्ट, और आई थिंक वो अपना सोफोमोर एंड कर रही है, मतलब जूनियर ईयर स्टार्ट करेगी. आफ्टर द इंटरव्यू आई आस्क्ड कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, एंड शी सेड कि आप मुझे रेट करें ओवर द इंटरव्यू और मुझे बताएं मैंने क्या सही किया क्या गलत किया. इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई वॉज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड. मैंने उसको भी बताया भी सही कि ये चीजें आपकी इस तरह से थी. तो फीडबैक शुड बी इंकरेज, दैट्स हाउ वी लर्न. एंड देन होल्ड रेगुलर टीम मीटिंग्स. यस प्लीज, अपनी टीम को रख के या अपने आप को छोड़ नहीं देना, इवन इफ यू आर एट अ स्टार्टिंग पोजिशन ना, नॉट अ लीडर, स्टार्टिंग पोजिशन में, क्योंकि दैट्स हाउ यू बिकम अ लीडर. आप अपने मैनेजर के साथ रेगुलर मीटिंग्स रखें. ये अगर आप मेरे किसी भी मैनेजर को उठा लेना, स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब टिल द एंड ना, दे विल टेल यू कि हर महीने या शुरू में हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना ये आ जाती है अपना काम लेके कि बताएं मुझे. अभी तक आई एम वर्किंग डायरेक्टली विद द फाउंडिंग टीम, और मैं अभी तक उनके पास चल जाती हूँ. मैं कहती हूँ मुझे बताएं हाउ आई एम डूइंग दिस, लेट्स हैव अ मीटिंग, प्लीज हैव अ मीटिंग. तो वो चीज जो है ना, वो हमेशा हमेशा हेल्प करती है. और सेम गोज फॉर दोज अंडर यू. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सुने अगला बंदा क्या कह रहा है, उसकी बात समझें वो क्यों कह रहा है. सिर्फ उसको ना करने के लिए या जवाब देने के लिए समझना. आप देखेंगे उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है. मे बी वो बंदा किसी और टीम में बहुत अच्छा है, किसी और प्रोजेक्ट में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं इस वजह से. एंड देन बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. योर टीम शुड बी एबल टू रिलाई ऑन यू. आई डोंट थिंक कि एक वो कॉर्पोरेट का वो है ना कि झूठी कहानियां डाल दो. आई डू नॉट बिलीव इन इट. मैंने कभी अपनी मैनेजर से झूठ नहीं बोला, ना मेरी टीम ने कभी मेरे से झूठ बोला है. दे डू नॉट फील लाइक वर्किंग, दैट्स ओके. लाइक आई डोंट नो आपके मैनेजर, अल्लाह करे आपको भी अच्छे मैनेजर मिले. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ बिल्कुल स्टार्ट में व्हेन आई वाज सो डन विद अ लॉट ऑफ वर्क. कॉर्पोरेट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. तो आई वाज सो डन विद माय वर्क एंड ऑल कि मैं अपने मैनेजर के पास गई थी एंड आई टोल्ड हर कि आई कैन नॉट अडल्ट टुडे, इट्स नॉट माय डे. तो शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू मेक मी सिट डाउन. मेरे लिए वो हॉट चॉकलेट लेकर आई, उन्होंने मेरे से पूछा, और दैट्स हाउ आई लर्न कि मुझे भी ये करना है. और अब मैं अपनी टीम के साथ ये करती हूँ कि अगर किसी का काम ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं बोलती नहीं हूँ और ये नहीं कहती दोबारा करो. आई गो ऑन अ कॉल विद देम एंड आई आस्क कि क्या हुआ है. तो दैट्स हाउ दे ट्रस्ट मी. ठीक है. और ये कंसिस्टेंटली मैंने करना है, मैंने हमेशा करना है, अपनी चीजों में करना है. इफ आई एम गेटिंग लेट आई टेल देम दैट एज वेल. तो ये चीज भी है कि इसके ऊपर आपने काम करना है. एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी भी वहीं पे काउंट हो जाती है. बट प्लीज अपनी इंटेग्रिटी पे काम करें. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर द सिचुएशन, आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी वैल्यूज के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट. यस, आपकी टीम में, आपके सबॉर्डिनेट्स में, आपके इक्वल्स में, आपके सीनियर्स में कोई बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, डू अप्रिशिएट देम, डू अप्रिशिएट देम. मेरे दिस एक वो होता है थैंक यू थर्सडे. इट्स थिंग जो कि जनरली कंपनीज में डिफरेंट नामों से होती है. वो ये होती है कि वंस अ वीक ना यू गेट टू मैसेज इन द जनरल ग्रुप जिसमें पूरी कंपनी होती है, लाइक कंपनी वाइड ग्रुप्स होते हैं. और उसमें यू टेल देम कि इस वीक फलां फलां बंदे ने मेरी ये चीजों की हेल्प की. यू अप्रिशिएट पीपल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वंस इन माय टीम वन पर्सन वाज वेरी डीमोटिवेटेड, और उसने लाइक मुझे फील हो रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग, लाइक देयर इज दिस एयर के कुछ मसला है, बट आई कुडंट पॉइंट आउट के मसला क्या है. एंड शी वेंट बिहाइंड माई बैक और उसने मेरे मैनेजर को जाके बताया कि नहीं, आई कैन नॉट वर्क विद हर और ये वो. और मुझे पता क्या चला कि वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैंने उसको एक काम दिया था, और हुआ ये कि अभी उसका फाइनल वर्जन नहीं आया था, बट अभी उसका जो फर्स्ट वर्जन था, आई सेंट इट टू माई टीम. अपने ग्रुप में मैंने भेजा, उनको कहा कि इसको आप लोगों ने जो है ना वो रेट करना है, कमेंट करें, अच्छा बुरा सब बताएं मुझे. तो उसमें मैंने ना उसको मेंशन नहीं किया था, बट आई हैड इन माय माइंड वाज के अभी तो रफ वर्जन जा रहा है, जब फाइनल जाएगा और सीनियर्स के ग्रुप में जाएगा तब मैं इसको मेंशन करूंगी, इसके नाम के साथ जाएगा. बट उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, बिकॉज इट मेक सेंस नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट. तो सेंस बनती है, उसने 2 हफ्ते उसके ऊपर काम किया था, तो उसको जाना चाहिए था क्रेडिट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर. अच्छा, इसमें क्या है, डिफरेंट टूल्स यूज करें. इट्स ओके आप कैलेंडली का लिंक बना के लोगों को भेजें, नए नए सॉफ्टवेयर सीखें, सोशल मीडिया पोस्ट को स्केड्यूल करने की चीजें सीखें, monday.com को सीखें, स्लैक को सीखें, ये जीरा को सीखें. मतलब ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं. इसके फ्री वर्जन्स को सीख लें आप, आपको पे करने की जरूरत नहीं है. आप यूट्यूब पे इसकी एक वीडियो देख लें, बट यू शुड नो कि हाउ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट.
how to write a very professional message, how to be professional in your team. At the same time, be very informal that the people rely on you and trust you and consider you as a friend. So there is a line, और उस gray area में कैसे रहना है, you should learn it. Like that's how you learn. You tell people के I am something जो आपकी टीम को, आपकी कंपनी को कुछ बना सकती है. I am worth it. ठीक है? That is important. And then conflict resolution. ये तो बहुत ज्यादा, अगेन आप लोग ग्रुप्स वगैरह में काम करते हो, नो मैटर व्हाट स्कूल यू आर फ्रॉम, आपके डेफिनेटली ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते होंगे. कुछ लोग बहुत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मसले होते हैं, तो वर्क थ्रू देम. और इसका मेरे लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इज टू टॉक. उनसे पूछें, अच्छा हाउ डू यू थिंक दिस विल वर्क, अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा, व्हाट इफ हम ये कर लें. फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. थोड़ी सी चीजें आपकी डलें, थोड़ी सी चीजें उनकी डलें, फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. और कभी कभी इट्स ओके टू गिव इट टू देम एज वेल. कोई नहीं सुन रहा, किसी के नहीं हो, इट्स फाइन. आपके उससे मार्क्स कट रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं, तो फिर थोड़ा सा लाइक फाइट ऑन इट. लाइक नॉट फाइट लाइक टॉक मोर. बट समटाइम्स अगर कोई आपको एंड रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा ना, तो इट्स ओके, लेट देम डू इट. दे विल रिमेम्बर इट फॉर एवर, ऑनेस्टली. Then pair team members for mentorship or peer coaching. ये क्या चीज है? ये आती है if you are a leader or have a team, और आप अपने इक्वल्स में भी वर्किंग ऑन इन अ टीम, तो एक बंदा ऑटोमेटिकली लीड करना शुरू हो जाता है. तो उसमें क्या होता है कि इफ समवन इज गुड एट समथिंग ना, तो उसको एक पीयर बनाते हैं, उसको लोग देते हैं. अच्छा, फॉर मी इट वर्कड व्हेन मेरे पास लेयर्स आ गई थी. लाइक मेरे नीचे लोग थे जो, और उसके बाद एक और लोग थे. तो लाइक माई टीम एंड देन न्यू हायर्स. तो वो न्यू हायर्स की जो कोचिंग थी ना, तो उसमें कुछ कुछ सेशंस मैंने अपनी टीम को दिए, बट आई यूज टू सिट इन दोस सेशंस एंड आई यूज टू सी एंड आई यूज टू मेंटोर देम एंड दे यूज टू मेंटोर द न्यू हायर्स. तो वो एक आपकी लेयर ऑफ लर्निंग क्रिएट हो जाती है. बट लम्स में भी आपके पास पीयर्स होते हैं, उनसे बातचीत करें, देखें, लर्न फ्रॉम देम, और खुद भी कोशिश करें लोगों को रीच आउट करने की. अपने जूनियर्स में, मेरा सबसे ज्यादा टाइम मेरे जूनियर्स के साथ गुजरा है लम्स में हमेशा, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं एंड आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है, रेगुलर चेक इन, यस, सी आप क्या कर रहे हैं, सी व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग. ठीक है, टू वर्क ऑन दिस. सो दैट वाज अबाउट कोलैबोरेशन. नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग. अच्छा, इसके ऊपर ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी. सिंपल सी चीज है, हाउ टू मेक अ डिसीजन. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने डिसीजन लेना क्या है. ठीक है, आपने उस डिसीजन के बारे में, यू शुड हैव सम डेटा. Manahil, we cannot hear you. I think we lost the connection. Can you hear me now? Yes, we can. Yes. Okay, somehow I got muted. Okay, okay. So let's start again with the decision making part. So again, आप लोगों ने बहुत मॉडल्स पढ़ लिए होंगे अपनी लम्स की लाइफ में, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बड़े डिसीजंस भी ले लिए होंगे, कुछ बहुत कामयाब गए होंगे, कुछ नहीं अच्छे गए होंगे. बट डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग में सिंपल सी चीज है कि आपने सोच समझ के, आपने एंड रिजल्ट्स को कंसीडर करके एक पॉइंट पर आना है. तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो ये आती है कि आपने एक चीज होती है डिसीजन ट्री बनाना. कुछ लोगों ने, आई डोंट नो, यहाँ पे सेशंस लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो क्लासेस या सेशंस होते हैं डिफरेंट एनालिटिक्स के, उसमें देयर इज दिस सॉफ्टवेयर डिसीजन ट्री का. उसमें आप ना यस नो के डिसीजन ट्रीज बनाते हैं कि ये होगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यस है, नो है. तो आई मेक डिसीजन ट्रीज, a lot of them, like personal matters में भी आई राइट थिंग्स, देन आई राइट थिंग्स डाउन, और मैं सोचती हूँ कि ठीक है ये चीज कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगी. देयर वाज अ पॉइंट माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गेट सो annoyed कि ये क्या अपनी किताब खोल के बैठ जाती है. बट नाउ एज अ जोक और मे बी बीइंग सीरियस, हम लोग अक्सर बात कर रहे थे कि चलो चलो इसका डिसीजन ट्री बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते हैं उसके ऊपर ना. डिसीजन ट्री में क्या होता है कि आपने एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी. आपने कहीं अप्लाई करना है, आपने अपनी रेज्यूमे सेट करनी है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ प्रेजेंट करना है, किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाना है, किसी से हेल्प मांगनी है. ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे डिसीजन हैं, आपको ये लेने आएंगे. तो एट वन पॉइंट इन योर लाइफ
Manahil, we lost. I think we lost the connection. We cannot hear you, Manahil. कैन यू हेयर मी नाउ? जी 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 जी। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई मेरा बार बार ना माइक म्यूट हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। यस, अगर हो तो प्लीज मुझे दोबारा से बता दीजिएगा। श्योर श्योर। ओके, ठीक है जी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में फिर से पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए आपने डिसीजन किस चीज के बारे में लेना है। ठीक है, उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है आपने। ठीक है कि अच्छा ठीक है, क्या ये पहले हो चुका है इन द पास्ट, क्या फ्यूचर पे इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें आपने देखना है कि और क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, उन सबको इवेल्युएट करके आपने देखना है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास। और ये आप मोस्टली यूज करते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अगर आप लोग अपने सोफोमोर के एंड पर हैं तो आपने इस साल जूनियर स्टार्ट करके यू ग्रेड की एप्लीकेशन फिल करनी होंगी। आई थिंक वो जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है उसकी करनी होगी। फिर अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और आगे मास्टर्स करना चाहते हैं उसकी करनी होगी। आपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो उस सब में यूज दिस। ठीक है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट शुरू की चीजें जो है ना, ये आपको हर कोई बता देगा, आपको खुद भी पता है। मुझे सबसे ज्यादा ये पॉइंट नंबर 6 जो है ना, ये और उसके बाद 7, ये दो चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करना भी है। इतना लंबा सोच के छोड़ नहीं देना बीच में, डू इट। कोई बात नहीं, अच्छा हो बुरा हो। और फिर उसके बाद आपने मॉनिटर करना है कि मेरा जो रिजल्ट आया है, इज इट वर्थ इट और नॉट। पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, व्हाट डिड आई लर्न। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन बाकी तो ये है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम और प्रोफेशनल वर्ल्ड तो आपने कम्युनिकेट करना है एंड देन यू नीड टू सी फीडबैक्स और इस तरह की चीजें। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखना है कि काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के साथ ही हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। डिसीजन मेकिंग इज फॉर द फ्यूचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉर द पास्ट। ठीक है, मतलब समथिंग दैट अकर्ड इन द पास्ट, वहां से आपको रूट कॉज मिलेगी। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, उसकी रूट कॉज क्या थी, क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग और ये वो सारे, अगेन ये सिंपल आपकी किताबों में से उठाई हुई चीजें हैं। बट आपने देखना है कि ये मसला आया ही क्यों, उसकी रूट कॉज क्या थी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती, पीछे से कोई मसला कुछ और आ रहा होता है। तो जो चीज नजर आ रही है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छे मार्क्स नहीं आए इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो पूछे क्यों नहीं आए, क्या ऐसी वजह थी कि नहीं आए। ठीक है, कहीं पे इंटरव्यू में जॉब नहीं लगी, एडमिशन नहीं हुआ, इंटर्नशिप नहीं लगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों नहीं लगी, क्या मसला था। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताए क्या है कि इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड ना, मैं आपको प्रोफेशनल्स की ज्यादा एग्जांपल दे सकती हूँ इस टाइम पे। इफ समवन हैज टेकन योर इंटरव्यू, आस्क देम फॉर द फीडबैक। इंटरव्यू में ना पूछें, जरूरी नहीं है पूछें, अक्सर अगला इंटरव्यू फौरन बाद में होता है तो लोगों के पास टाइम नहीं होता। आप जो है वो बाद में ईमेल करके पूछें, लिंक्डइन पे पूछें कि हाय वी हैड एन इंटरव्यू, आपने व्हाट आर योर पॉइंट्स, व्हाट शुड आई इंप्रूव। जॉब नहीं हुई, आस्क देम के क्या रीजंस थी, व्हाट शुड आई वर्क ऑन। ठीक है, 90% लोग जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो 10% जवाब देंगे ना, वो बहुत अच्छा जवाब देंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इफ यू आर हायर्ड, डू ईमेल और डू राइट अ थैंक यू मैसेज फॉर योर हायरिंग मैनेजर्स। 3-4 लोग होते हैं, एचआर का बंदा होता है, किसी टीम का बंदा होता है, देन एक सीनियर बंदा होता है। सबको थैंक यू करें, उनसे इंटरव्यू का फीडबैक लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये मैंने बीच में ही आपको ऐसी बात बता दी। अगेन आइडिया फाइंडिंग, आपने देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजें हैं, बट आप अपनी डेली लाइफ में कर भी रहे हैं, बट बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट कि आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बस अगर आप कॉन्शियस हो रहे हैं ना, अगेन अपने आप को जान रहे हैं ना, अपने एक्शंस को जान रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और खुद ही हो जाएगी। एंड दैट्स, आई हैव सीन पीपल इम्प्रूव सो मच कि आधे सेंटेंस के बाद उनको पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है, चेक दिस। तो दैट्स द लेवल दैट यू शुड अचीव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। सबसे पहले आ जाती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है, चेंज को एम्ब्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के टाइम पे तो देयर इज चैट जीपीटी, एआई सबसे बड़ा चेंज है। आप लोगों के लिए शायद इतना ना हो जितना मेरे लेवल के लोगों के लिए है कि इट्स अ लॉट। लाइक अभी के 2 साल पहले आई वॉज राइटिंग द ईमेल्स, आई वॉज राइटिंग एवरी सिंगल थिंग माई सेल्फ, और अब क्या है कि मैं चैट जीपीटी से लिखवा रही हूँ, मैं एआई से लिखवा रही हूँ, मैं जेमिनाई के पास जा रही हूँ। तो उसको इम्ब्रेस करना, उसको लर्न करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपकी
थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आ सकते हैं, ठीक है। बट एक और चीज जो मैं कहूंगी ना, फॉर एआई डू नॉट रिलाई ऑन इट सो मच, ठीक है, प्लीज बहुत ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि अगर मैंने एआई से लेट्स सपोज मार्केटिंग का प्लान बनाना है, तो मैं उसको पूरा बताऊंगी, मेरा बिजनेस ये है, उसका लेवल ये है, टाइम ये है, पोस्ट ऐसे करनी है, प्लेटफॉर्म ये है, मुझे एक प्लान बना के दो। तो दैट्स योर प्रॉम्प्ट, कि आप उसको कितना क्लियर मैसेज, लर्न टू राइट अ प्रॉम्प्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन इट, डू नॉट लेट इट आई डोंट नो रॉट योर स्किल्स। मे बी अपने स्किल्स को आपने कहीं नहीं जाने देना। चैट जीपीटी को साथ लेके चलें, लेकिन पीपल शुड नो कि कहीं ना कहीं इसकी अपनी क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। तो तीन चीजें आपने अडेप्टेबिलिटी में रखनी है, जो आपकी इंप्रूव होती हैं, कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, योर स्किल्स, योर थिंकिंग एंड योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ यू मैनेज योर डे, हाउ यू वर्क थिंग्स अराउंड। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगेन एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर जाना है, विद द वर्ल्ड आपने भी चेंज होना है, ठीक है। अब गूगल पे आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे जो आपको चैट जीपीटी या जेमिनाई पे मिल जाएंगे। कुछ टाइम के बाद कोई नया नई चीज आ जाएगी, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, एनालिटिकल टूल्स आ रहे हैं, उनको सीखें, माइक्रोसॉफ्ट से आगे बढ़ के सीखें, और भी बहुत कुछ आ गया, उन सबको प्लीज लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इनोवेशन क्या है कि बीइंग डिफरेंट, सिंपल सी चीज है, बीइंग डिफरेंट, बीइंग न्यू। I personally love people who bring new ideas and I'm always open to them. But ये होगा कि अगर obviously उनको professionals में implement करें तो we need to think it through, ठीक है। But आपने इसमें देखना है, you should encourage it within your peers, within your teams and अपने आप के साथ भी, ठीक है। लर्न करें चीजों को। अब आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट बन के आ रही हैं, आपको ऑटोमेटिकली कैप्शंस मिल रहे हैं, आपको एसईओ आ रहा है, मतलब देयर इज अ लॉट। उस सबको यू कैन नॉट बी द किंग ऑफ ऑल ठीक है। बट आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, तो उस कुछ ना कुछ को सीखें। एंड अगर अगर क्या इंशाल्लाह एट सम पॉइंट इन योर लाइफ आप लोग लीडिंग पोजीशंस पर होंगे, तो बी द वन जिसके ऊपर लोग डिपेंड कर सकते हैं, बी द डिफरेंट मैनेजर, बी द मैनेजर जिसके बारे में फैमिलीज भी चिल होते हैं कि यार दे माई किड हैज अ वेरी गुड मैनेजर, फ्रेंड्स कह रहे होते हैं यार इसका मैनेजर बहुत अच्छा है। बी दैट मैनेजर, चाहे आपको अच्छा मिले आपको बुरा मिले, डज नॉट मीन कि आपने अच्छा या बुरा होना है। बी द गुड मैनेजर प्लीज। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, चेंज विद द वर्ल्ड। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने जॉब वर्ल्ड में रहना है। तो कॉर्पोरेट में तो जो स्किल्स लेके मैं ग्रेजुएट हुई थी आज से 3 साल बाद, मुझे लगता है कि मैं मास्टर्स कर लेती ना, तो लाइक अब तक मैंने जितनी चीजें और कोर्सेज ले लिए ना, मुझे एक डिग्री देनी चाहिए लोगों को मास्टर्स की, क्योंकि इतना कुछ बदल गया है। माय ब्रदर इज इन लम्स और वो आई डोंट नो जूनियर स्टार्ट करेगा अपना या क्या, उसकी चीजें ही डिफरेंट हैं उन चीजों से जो मैंने पढ़ी। द कोर्सेज आर सेम बट द कंटेंट इज डिफरेंट, बट फॉर सम कोर्सेज द कंटेंट इज सो सेम कि मैं देखी कह रही थी व्हाई इज दिस इंस्ट्रक्टर टीचिंग द सेम थिंग अगेन। तो लर्न लर्न न्यू थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव आखिरी माय 2 सेंट्स, बनिए 9 सेंट्स गए थे बट a few very small advices for you guys. Number one, think smart. आप लम्स में पढ़ते हो, आपने तो ये चीज सीखी ली होगी। हार्ड वर्क वर्क्स, यस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। शुरू के करियर के सालों में तो बहुत मेहनत कर लो ताकि आगे आके आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बहुत छोटी उम्र में सीनियर लेवल पे आ जाओ, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क के साथ यू हैव टू थिंक स्मार्टली। बहुत छोटी सी बात आती है, कॉर्पोरेट की कहानी। लम्स में हम हर प्रोजेक्ट पे फॉर्म बना रहे हैं, ग्रुप्स में भेज रहे हैं, जी हमें रिजल्ट चाहिए, हमें आंसर्स चाहिए। कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी कंपनी थी, आई मैं कभी कभी ना साइड प्रोजेक्ट्स कर लेती हूँ मार्केटिंग के फॉर कंपनीज, बट वो मेरे एज पर माई कॉन्ट्रैक्ट आई कैन नॉट नेम देम, बट बहुत बड़ी फेमस कंपनी है इन पाकिस्तान। वो लोग जी अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल कर रहे हैं या उनको फेसबुक और लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करके उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और मतलब मेरा वो मुझे कह रहे हैं हम ये कैसे करो, मेरा सिर्फ एक जवाब था, गूगल फॉर्म्स। इतनी छोटी चीज है यार, आप फॉर्म बनाओ, सबको ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। जो चीज आपका, वो उनका 4 हफ्तों का प्रोजेक्ट था, जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन। हम लोग हर दूसरे दिन कर रहे हैं। सो तो यहाँ पे लम्स में कर रहे हो ना, उसको आगे लेकर जाना, यहाँ छोड़कर मत चले जाना, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, अपने आप के ऊपर आप नहीं करोगे ना ट्रस्ट, कोई और नहीं करेगा ऑनेस्टली। अपने
अपना फ्रेंड खुद बनना है सबसे पहले। बी यू, whoever you are। मैं बहुत चिल बंदी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बातें करने वाली बंदी हूँ। आई मैं बोर हो जाती हूँ सेम चीज करके, सीरियस रह के। सो मेरी टीम भी ऐसी ही बन जाती है और मैं अपनी टीम को मोल्ड भी वैसी कर लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क। काम मेरा थोड़ा सा भी पीछे हो जाता है ना, तो मैं सारा दिन सारी रात लगा दूंगी, लेकिन मेरा काम नहीं पीछे होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं इंजॉय भी करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट स्लेव नहीं करना चाहती। तो दैट्स हु आई एम। आप भी देखें आप कौन है। नेवर स्टॉप लर्निंग। ये तो मेरे ख्याल से जब मैं लम्स में आई थी तो मैं डॉक्टरी छोड़ कर आई थी मैं तो मुझे सबने कहा था कि यार तुम एमबीबीएस कर लेती, यू वुड हैव बीन अ वेरी गुड डॉक्टर, व्हाई डिड यू नॉट टेक द टेस्ट और इस तरह की चीजें। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं सारी जिंदगी पढ़ नहीं सकती तो वो ऐसा बैकफायर हुआ, द वर्ल्ड चेंज्ड एंड नाउ वी हैव टू लर्न एवरी फ्यू डेज। तो यू नेवर स्टॉप लर्निंग। दैट्स माय टेक ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। बट अगेन मैंने नहीं बनना था डॉक्टर, आई एम स्टिल हैप्पी वेयर आई एम। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजें गलत हो जाती हैं, आप ईमेल करना भूल जाते हो, आप किसी को मैसेज करना भूल जाते हो, इट्स ओके, नथिंग इज ऑन फायर। मैं अपनी टीम में ना, अच्छा मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मैं टेंशन बहुत ले लेती हूँ हर चीज की। मेरे जो इक्वल्स है ना, वो आई रिमेम्बर कि ये अक्सर होता है कि कुछ होने वाला होता है ना, वो मुझे सबसे पहले कहते हैं आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। ये एक जुमला है मेरे एक फ्रेंड का जो मुझे सबसे पहले कहता है, मुझे दिमाग में बैठा हुआ है कि आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। लेकिन उसमें क्या है कि टेंशन में ना आप पैनिक करते हो। सो शुरू शुरू में ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस इन सुपर मामा, एक मैंने ना इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया था इस्लामाबाद में। वो उनकी बहुत अच्छी टीम है, इस्लामाबाद वाले सारे के सारे ही उसमें होते हैं। तो मार्केटिंग का मैं उनका काम करी थी, सबका ही करी होती थी। तो वो पोस्ट स्केड्यूल करनी होती थी ये वो। तो आई मिस्ड वन पोस्ट, और वो ब्रांड के मैसेजेस आ रहे थे कि जी आपने हमसे पैसे ले लिए, ये कर लिया, आपने पोस्ट नहीं की है वो। तो मेरी तो बहुत जान निकल गई थी ठीक है। तो मेरी मैनेजर ने मुझे सिर्फ एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि नथिंग इज एवर ऑन फायर। तो ये आपने अपने दिमाग में, अनलेस इट इज ठीक है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि नथिंग इज एवर ऑन फायर, इट्स फाइन। आप बस पूरी सच्ची बात बता दो अपने, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो उसको। समटाइम्स यू कैन नॉट ट्रस्ट योर डायरेक्ट मैनेजर, मे बी समवन एल्स, मे बी अ फ्रेंड, मे बी योर इक्वल, बट आस्क फॉर हेल्प, दे विल हेल्प यू। ठीक है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू, इट्स नॉट। ठीक है, इट्स अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट द क्लाइंट्स। मेरा एक फ्रेंड था एजुकेटिव में, उसको उसकी ऑनबोर्डिंग हो रही थी, उसको हमने हमारा एक पूरा दिन होता था क्लाइंट्स के ऊपर, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर क्लाइंट कस्टमर। तो एंड पे ना हम लोग बच्चों से पूछते थे कि हाँ जी आपका क्या आज का लेसन है, आपकी क्या समराइज करें, आपने क्या सीखा है, जस्ट टू सी कि वो सुन भी रहे थे कि नहीं। सो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, उसने कहा कस्टमर आपका भगवान होता है तो आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन हियर, बट मुझे लगता है कि ये उसने मजाक में जो बात की थी ना, इट्स वेरी ट्रू कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट द टीम, इट्स अबाउट द image, maybe a client, maybe a customer, it's not always about you, do not make it about you। ठीक है, टेंट्रम्स थ्रो करने से आप प्रोफेशनल नहीं बनते हो। ग्रो अप एंड डू नॉट रश। आई सी पीपल हर 6 महीने बाद जॉब बदल रहे हैं, हर नई ऑफर के साथ टीम बदल रहे हैं। क्यों जी, बेहतर पैसे मिल रहे हैं। आपकी लर्निंग का क्या हुआ, आपकी ग्रोथ का क्या हुआ, आप एक जगह पे रुके नहीं, आप अच्छे बुरे लोगों से मिले नहीं। तो प्लीज डू नॉट रश। हर चीज मिल जाती है अपने टाइम पे मिल जाती है, बट जब तक आप उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ लर्निंग पे नहीं पहुंचेंगे ना, आपको नहीं मिलेगी। एंड देन फॉलो योर पैशन, जो आप करना चाहते हो करो। मतलब ये बहुत घिसा पिटा डायलॉग है, आई नो, बट यस ये लाजमी तौर पे करो कि फॉलो योर पैशन, आपने जो करना है वो करो। एंड देन इट्स ओके टू से यू दैट यू डोंट नो अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मेरा पहला इंटरव्यू था, बहुत पहला, राइट आफ्टर इवन मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, लम्स के हॉस्टल में बैठ के मैंने इंटरव्यू दिया था, ये पोस्टर माय वॉल्स वालों को। उन्होंने मेरे से पूछा आपको पता है एससीओ क्या होती है, आपको एससीओ आती है। मैंने कहा आती है मुझे पता भी नहीं था एससीओ क्या आती है। कहते वो अच्छा वो क्या होती है। अब मैं सोची जा रही हूँ, उनको भी अंदाजा हो गया था कि ये झूठ बोल रही है। फिर एक और इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मेरे से पूछा आपने हमारी वेबसाइट देखी है। मैंने कहा जी देखी है। अभी उनकी वेबसाइट ही नहीं लाइव हुई थी और मैं उनको कहती जी मैंने आपकी वेबसाइट देखी है। फिर मैंने सीखा कि नहीं, दिस डज नॉट वर्क, आई कैन नॉट से येस टू एवरीथिंग। तो इसलिए इट्स ओके टू टेल देम कि आई डोंट नो। अगर मैं कह देती उनको कि जी मैंने वेबसाइट नहीं देखी, तो उनको होता कि हाँ ठीक है ही नहीं तो इसने नहीं देखी। ठीक है,
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अब अगर आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज मुझे बता दें, so that मैं उसको आंसर कर सकूं. I spoke for Thank you, so long. Manahil. No problem. I think you've pretty much explained everything, but still, if somebody has any questions, they can raise their hands or maybe write in the chat box. Let's follow a 10-second rule. If within 10 seconds nobody asks a question, we'll assume there's no question. 7, 8, 9, 10. Okay, all right. I think this is it. Ali has a question. Okay. Ali says, in group projects, it often happens that some students are not willing to work. Yes, it happens a lot. उसमें if you are in lumps ना, तो सबसे पहली चीज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका ग्रेड. प्लीज, ठीक है. आप उसके पीछे मत पड़ जाएं. कोई नहीं कर रहा ना, बट यू हैव अदर पीपल ना, इग्नोर देम. आप अपने ग्रेड्स देखें. इतना पेटी होके उसके साथ फाइट करके इंस्ट्रक्टर्स के पास जाकर कोई फायदा नहीं होता. आई हैव ट्राइड इट, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं होता. तो आपने दो चीजें होती हैं कि तो अभी मैं अली का क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ कि आपने एक तो उस बंदे से डायरेक्टली बात करें. बी डायरेक्ट, उसको मैसेज करके कहें कि यार यू आर नॉट पुटिंग इट द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड. दिस इज द डेडलाइन, यू आर नॉट डूइंग दिस. ठीक है, तो प्लीज लेट अस नो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड और एल्स वी कैन आस्क द टीएज और द इंस्ट्रक्टर टू चेंज द ग्रुप. पहली चीज हो गई. वो कहेंगे हम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको छोड़ दें. प्लीज अपने ग्रेड पे फोकस करें. ये आपने जो है ना, हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो काम नहीं कर रहे होते. आप काम करोगे, आपको उसका सिला खुद ही मिल जाएगा, लेकिन प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर ग्रेड ऑन इट. ठीक है, अकेले काम करना पड़ रहा है ना, करो, लेकिन अपने ग्रेड्स नहीं खराब करना. अच्छा, हाउ डज वन बी डिप्लोमेटिक while being honest in an interview or a corporate setup? ओके, सो इसमें ये होता है कि एक चीज, वन स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स अ लॉट इज के यू आर टेलिंग समथिंग बीइंग ऑनेस्ट, तो योर नेक्स्ट सेंटेंस शुड कवर इट अप. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आई गेट एंशियस. मेरी एंजाइटी बहुत बड़ा मसला है. ठीक है, तो मैं ये जाके किसी को अगर इंटरव्यू में बोल दूंगी तो माई नेक्स्ट सेंटेंस शुड टेल देम के वाओ दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, ये नेगेटिव कैसे हो सकती है इसकी. ठीक है, तो आपने जस्ट सी कि आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है. एंड यू डोंट नीड टू बी सो मच ऑनेस्ट. ऑनेस्टली इतनी ज्यादा ईमानदारी, वर्क ऑन इट ना. इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करो अपने आप को. इतना ज्यादा सच बोलोगे तो बहुत बुरा फंसोगे. आपने अपनी इमेज बनानी है उस बंदे के साथ. हाँ, कोई बहुत ऐसे ना झूठ बोल देना अपने रेज्यूमे में, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर लिख दो कि ये मुझे आता है और वो क्वेश्चंस कर रहे हो और आपको ना आता हो, वो ना करना. ठीक है, बट इट्स ओके टू बी डिप्लोमेटिक. ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, या अगर आप लोगों को आंसर सही नहीं मिला तो यू कैन काउंटर क्वेश्चन एज वेल. Anyone? Yes, how Abdul to Muiz. deal with people who have leg pulling nature. These people don't help sincerely. A very overrated feature of plums is that people drag you down. Yes, to get themselves. This is so true. You ignore them. Honestly, सबसे बड़ी चीज है you ignore them. आपकी लाइफ में इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को देखो. आप इरिटेट हो रहे होते हो, आप एनॉय हो रहे होते हो ना, टेक दिस एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ. कल को मेरे ऑफिस में, मेरी कंपनी में, मेरे अपने बिजनेस में ऐसे लोग मुझे मिलेंगे तो मैं उनको बर्दाश्त कर लूंगा. लेकिन यू इग्नोर देम. ऐसे लोगों के साथ ना डील करने का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ देयर नेचर. हाँ, इफ समवन इज क्लोज टू यू लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो टॉक. ठीक है, कम्युनिकेट करो, उनसे बताओ कि यार आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू डू. इफ यू थिंक कि वो बंदा सीरियस लेगा. अगर इट्स अ ग्रुप मेंबर और अ रैंडम acquaintance that you know, it's okay, इग्नोर करो उनसे. जितना कम उनके साथ रह सकते हो उतना कम रहो. अच्छा जी, और कोई क्वेश्चंस? I think that's pretty much it. आपने सारा बहुत जबरदस्त किस्म का आपका सेशन था मनाहे. It was very insightful, very informative. Thank you so much for your time, and I would thank the audience as well and ask them to stay tuned for our next upcoming summer mentorship series. So yeah, have a very, very good day. Thank you so much. Thank you so much for your time and बाकी सबके टाइम का भी. एंड अगेन यू गाइस कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन.
मनाहिल तहसीन इज माय नेम. आप लोग मुझे किसी भी टाइम पे रीच आउट कर सकते हैं for anything if there's like anything that you want to talk about. Thank you so much, Manahil. Thank you. Have a very good day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.